Hello everyone, good morning students. In today's session, we will discuss the question answer of comprehension check and working with the text. So everybody please attention here. Let's start with question number 1. What had happened to Jodie's father? Answer. जॉडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नैक. जॉडी के फादर को क्या हुआ था? तो जॉडी के फादर को रेटल ने बाइट कर दिया था. सो जॉडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नैक. रेटल स्नैक मीन्स आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन अ पॉइजनस स्नैक. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ? आंसर. जॉडीज फादर killed the doe or she deer. Doe means she deer. The female deer is called doe. He used her heart and one liver to draw out the snake's poison. In this way, the doe saved Penny's life. Question number 3. Why does Jodie want to bring the fawn home? Answer. Jodie's father had killed the doe. Without the mother deer, the fawn was likely to starve to death in the forest. So, Jodie wanted to bring the young fawn home. जॉडी जो था वो फॉन को अपने घर पे क्यों लाना चाहता था? बिकॉज जॉडी के फादर जो थे, मीन्स जॉडी ने और उसके फादर ने डो को मार डाला था. एंड अब मदर डियर के बिना जो फॉन था वो भूख की वजह से मर जाता. सो जॉडी वांटेड टू ब्रिंग द यंग फॉन होम. बिकॉज वी डिस्कस्ड दैट जॉडी वॉज अ लिटल बॉय बट ही वॉज वेरी काइंड एंड compassionate. So he showed this kindness towards this fawn. Number 4. How does Jodie know that the fawn is a male? जॉडी को कैसे पता चला कि वो जो fawn था वो एक मेल था? Answer. Jodie knew that the fawn was a male because the spots on its body were all in a line. जो फॉन की बॉडी पे जो स्पॉट्स थे वो कैसे थे? वन लाइन में सीक्वेंस में थे. हिज फादर हैड टोल्ड हिम दैट ऑन द बॉडी ऑफ अ डो फॉन द स्पॉट्स आर इन डिफरेंट डिरेक्शंस. सो ही नो दैट द फॉन इज अ मैन. कॉम्प्रिहेंशन चेक 2. नंबर 1. जॉडी डिडंट वॉन्ट मिलविल विथ हिम फॉर 2 reasons. व्हाट वर दे? जॉडी मिलविल को अपने साथ 2 reasons के लिए 2 reasons की वजह से लेके जाना नहीं चाहता था. What were they? वो 2 reasons क्या थे? So students, I have discussed these things also during this lesson's explanation. Let's discuss again this answer. Jodie didn't want Melville with him for 2 reasons. One reason was that if the fawn was dead or could not be found, he did not want Melville to see his disappointment. एक रीज़न तो ये था कि अगर वो फ़ोन जॉडी को नहीं मिला या तो फिर मरा हुआ मिलेगा तो उसके चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट होगी वो मिलविल को वो डिसअपॉइंटमेंट दिखाना नहीं चाहता था. द सेकेंड रीज़न वॉज दैट इफ दे फाउंड द फ़ोन then their meeting would be so lovely and secret that he could not endure to share it. एंड सेकेंड रीज़न कौन सा था? सेकेंड रीज़न ये था कि अगर उसको फ़ोन मिल भी जाता तो उसकी और फ़ोन की जो मीटिंग होगी वो बहुत ही लवली एंड सीक्रेट होगी और ये वो सीक्रेट जो उसके साथ मिलविल के साथ शेयर करना एंड्योर नहीं कर पा रहा था. दैट्स वाई जॉडी डिडंट वांट मिलविल विथ हिम फॉर दिस रीजंस. सेकेंड क्वेश्चन. Why was Melville afraid to leave Jodie alone? Answer. Melville did not want to leave Jodie alone as he was afraid that Jodie could lose his way or get bitten by a snake. मिलविल को ये डर था कि अगर उन्होंने जॉडी को अकेले भेज दिया तो जॉडी या तो रास्ता भूल जाएगा
या तो फिर कोई स्नेक उसे बाइट कर लेगा. दैट्स वाई ही वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलॉन. कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 3. क्वेश्चन 1. हाउ डिड Jody bring the phone back home? Answer. Jody did not want to scare the phone away. That is why he first stroked its neck slowly and then put his arms around it. सबसे पहले उसने वो फ़ोन का जो नेक था उस पर थोड़ा सा अपना हाथ रखा. देन उसने अपने हाथ उसकी बॉडी के उसके आर्म्स के अराउंड रखा. Then he picked it up and carried it through the thick bushes. फिर उसने उसको अपनी गोदी में उठा लिया. He tried to shield its face from the sharp vines. He stopped to rest on his way home. On walking a little, he saw the fawn following him. After this, he would either carry fawn or put it down, so that it would follow him by itself. When they reached home, it refused to climb the stairs. He then picked it up. जब वो घर पे पहुँचे तब भी जॉडी ने क्या किया था, उसको नीचे उतार दिया था, क्योंकि जॉडी ये चाहता था कि वो फ़ोन अपने आप चलने के लिए थोड़े एफर्ट्स करे. बट वो स्टेयर्स, वो सीढ़ी चढ़ने के लिए फ़ोन ने मना कर दिया. So he then pick it up again and took it inside the house. Question number 2. Jody was filled with emotion after he found the phone. Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? The question, it means जब जॉडी को वो फ़ोन मिला था तो वो इमोशन से फिल हो चुका था, राइट. तो ऐसे कौन से 3 फ्रेजेस हैं कि जो ये शो करे कि वो कैसे फील कर रहा था. आंसर. जॉडी वॉज फिल्ड विथ इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन. व्हेन ही स्टक्ड इट्स नेक, द टच मेड हिम डेलीरियस. डेलीरियस मीन्स वेरी एक्साइटेड. उसका जो टच था उसको बहुत एक्साइटेड फील करवा रहा था. When he realized that it was his phone now, he was light-headed with his joy. When he finally brought the phone into the house, Penny thought that the boy's eyes was so bright as the phone's. Question number 3. How did the deer bring milk from the god? डियर ने मीन्स जो फ़ोन था उसने गॉड में से दूध कैसे पिया. द आंसर. द डियर ड्रैंक द मिल्क फ्रॉम जॉडीज हैंड. व्हेन जॉडी गेव मिल्क टू द फ़ोन इन गॉड, इट बटेड इट सडनली. जब जॉडी ने वो मिल्क का गॉड जब फ़ोन को पीने के लिए दिया तो उसने क्या किया, उसने धीरे से उसको स्मेल्ट किया. नॉट नोइंग वॉट टू डू, बट उसको पता नहीं था कि वो क्या करें, बिकॉज इट वॉज वेरी लिटल. सो इट डिडंट नो वॉट टू डू विद द मिल्क इन द गॉड. इट वॉज देन दैट जॉडी डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड पुश्ड देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ. फिर उसने अपनी उंगलियां थोड़े से दूध मिल्क में पोर की. देन जो वो उंगलियां थी उसने फ़ोन के माउथ में डाली, सॉफ्ट वेट की, सो दैट इट वुड ब्रिंग द मिल्क. नंबर 4. वाई डिडंट द फ़ोन फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड. जॉडी ने सोचा था कि फ़ोन जो है वो उसे फॉलो करेगा, बट फ़ोन ने फॉलो नहीं किया. क्यों? आंसर. द डियर इज़ अ वाइल्ड एनिमल. इट इज़ यूज टू अ लाइफ इन द फॉरेस्ट. अब डियर जो है वो वाइल्ड एनिमल है, एंड एज वी ऑल नो दैट वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट एंड दे यूज टू अ लाइफ इन द फॉरेस्ट. एंड फॉरेस्ट में वो अपनी लाइफ जीने के लिए यूज टू हो जाते हैं, उनको हैबिट हो जाती है. व्हेन द फॉन रीच्ड जॉडीज होम, इट डिड नॉट फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स. जब फाइनली फ़ोन जॉडी के घर में पहुंच गया तो वो जो सीढ़ी थी उसके ऊपर वो
चढ़ नहीं पा रहा था. It didn't follow because of the strangeness of the house and the stairs and everything. This is similar to its reaction to the milk in the gourd. क्योंकि ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में यूज टू हो जाते हैं कैसे लाइफ जीनी है. सो दे आर वेरी स्ट्रेंज ऑफ द हाउस एंड ऑफ द स्टेप्स एंड एवरीथिंग. सो इट सिंपली डिड नॉट नो व्हाट टू डू. Let's discuss the question answers of working with the text now. Question number 1. Why did Penny Buxter allow Jody to go find the fawn and raise it? जो पेनी बक्स्टर थे उन्होंने जॉडी को क्यों अलाउ किया कि वो फॉन को ढूंढ के लेके आए? द आंसर इज पेनी अलाउड जॉडी टू गो फाइंड द फॉन and raise it because it seemed ungrateful to him to leave the fawn to starve. क्योंकि उन्होंने जो उसकी मदर को मार डाला था वो अपनी लाइफ के लिए मारा था, अपनी वजह से मारा था. So they are very ungrateful to him. He agreed with Jody that they had killed the doe for their purpose and the fawn was orphaned फॉर नो फॉल्ट ऑफ इट्स ओन. अब जो फॉन था उसे अपनी मम्मा के बिना अपनी मदर के बिना जीना पड़ा था, वो भी विदाउट एनी फॉल्ट. सो दे कुड नॉट लेट द फॉन स्टार्व. दे फेल्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इट. इसीलिए उनको फॉन के टूवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई एंड ही अलाउड जॉडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट. Question number 2. What did Doc Wilson mean when he said, "Nothing in the world ever comes quite free"? Answer. Penny had killed the doe to save his life. पेनी ने डो को क्यों मारा था? तो अपनी लाइफ सेव करने के लिए. Therefore, in regard for what the doe had done, its fawn needed to be taken care of and saved from starvation. इसीलिए जब उन्होंने डो को अपने प्रॉफिट के लिए अपने पर्पस के लिए किल किया तो अब फॉन को कैसे रेस करें, उनकी जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर आ गई थी. उनको ये केयर करनी थी और उसको मीन्स डो को फॉन को स्टारवेशन से बचाना था. This was what Doc Wilson meant when he said that nothing in the world came quite free. So students, here we have completed the discussion of all the question answers of this lesson. In next session, we will discuss the remaining exercise of this lesson. Thank you everyone. Bye. Have a nice day.